there is a lot of miscommunication and rumors on social media and WhatsApp around pregnancy during COVID times and vaccination during breastfeeding. And a lot of such things are going on. So I thought that, who better than you with such a rich experience in gynecology and obstetrics to clear कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. Actually, COVID infection is not an indication for termination of pregnancy. So if any age of gestation, the infection is being diagnosed, the pregnancy is to be continued, but with all proper precautions and treatment. And treatment is possible. The medication is there, which is pregnancy safe and baby safe. They have to take it very seriously and patient to be hospitalized and to be treated. But couple can continue the pregnancy if they want to continue. COVID is not an indication to terminate the pregnancy. Yes, the pregnancy rate is increased definitely, and it is a 50-50. 50% is accidental. The accidental pregnancy, the termination rate is more. And couple are planning the pregnancy also. 50% are planned pregnancy. They think lockdown hai, khali hai, chalo yahi kaam nipta lein zindagi ka. So that is how the things have gone. Whenever pregnancy is confirmed, the pregnant lady take the precautions as she is having COVID or one of the family member is having the COVID. Follow the CAB. CAB is the COVID appropriate behavior. I will give you the example, like she should be in isolation. If any member of the family is going out of the house, she has to maintain the distance from him, distance from other family members. She should wear the at least cloth mask in the house. Hand hygiene, yes, it is must. That she should behave like कि उसको COVID हो सकता है और उसके हिसाब से because she is more receptive, more susceptible, तो उसको पहले से ही precautions लेना है. अब यदि उनका कोई छोटा बेबी है, फर्स्ट बेबी, सेकेंड बेबी एंड थर्ड प्रेगनेंसी, तो बच्चा तो मदर के पास जरूर आएगा, वो तो नहीं रुकेगा. तो इधर यू क्रिएट अ वॉल बिटवीन यू एंड द बेबी, लाइक यू वेयर अ सर्जिकल गाउन. एक क्लीन सरफेस रखो अपने ऊपर कि बच्चा आपसे खेलता है, आपकी गोदी में आता है तो कोई फर्क ना पड़े. मेड आती है, पहली बात तो मेड होना नहीं चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन टुडेज लाइफ. तो उसको आप मास्क दीजिए, उसको अपने कपड़े दीजिए, उसको पूरा हाइजीन के साथ इन्वॉल्व करिए, बट यू डोंट थिंक कि मुझे होगा नहीं. Second point, inhalation, steam inhalation twice a day to be done. Saline gargles once a day to be done. B complex and vitamin C. The attending obstetrician will definitely advise her the vitamins to increase the immunity. But depend on allopathic treatment, काढ़ा ये सब नहीं लेना है, पर अपने को बचा के रखना है. Take all the precautions. जैसे ही आपको लगता है कि आपको सिम्टम आया, देखो सिम्टम आते ही टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है. इट टेक्स 5 to 7 days. सपोज डे 1 यू फील फीवरिश, 99 डिग्री टेम्परेचर है, हल्का सा सोर थ्रोट है, जैसे किसी भी कॉमन वायरल फीवर में होता है, देन इमीडिएटली इन्फॉर्म योर ऑब्स्टेट्रिशियन, टेक द एडवाइस, एंड देन she will start your treatment in coordination with physician. They will team up and they will start your treatment immediately. The test will be done either on 5th day or 7th day, depending on your symptomatology. And if it is positive, first advise hospitalization. If hospitalization not possible, then the treatment at home in isolation. Do you understand what is the difference between quarantine and isolation? Quarantine का मतलब होता है कि आपको डिजीज नहीं है. जैसे आप फ्लाइट से जाते हैं, आपको डिजीज नहीं है, पर आपको क्वारंटाइन करा दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है. Isolation means you are diseased, you are having the disease, and then you are being isolated from the other people. ठीक है ना? So if you are having the disease, you are being isolated in a room. Room has to be well ventilated. एरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें सनलाइट आना चाहिए, फ्रेश एयर आना चाहिए. ठीक है.
और एयर जी। सर्कुलेशन होना चाहिए, क्योंकि कोविड इज द एयरबॉर्न डिजीज। एयर सर्कुलेट नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? डिल्यूशन अच्छा। नहीं होगा ना, वायरस परसिस्ट करेगा एनवायरमेंट में, isn't it? And जी। isolation with proper treatment at home. With monitoring will be done with the pulse oximeter. Basically saturation is the most important thing. Second is temperature, तो आप घर पर आराम से ले सकते हैं. Even you have the recording apparatus for BP and pulse also. So monitoring at home is not a difficult job, but it will be done under surveillance with the help of your doctor. नॉर्मली आपका वेरी सेचुरेशन 95 to 100% के बीच में वेरी करता है, बट कोविड में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सेचुरेशन मेंटेन्ड होते हुए भी वो प्रोग्रेस कर सकता है, तो आपको उसे कस्टमाइज करना पड़ेगा. कस्टमाइज से मतलब है जैसे आपका 97 चल रहा है और फिर आपको 95 मिलता है, कहने को 2% का फर्क है, लेकिन डोंट इग्नोर इट. इमीडिएटली यू एक्सर्ट योरसेल्फ, वॉक करो या डीप ब्रीदिंग करो. उसके साथ यदि वो नहीं बढ़ता है, then that 2% difference is also significant. If it is below 90, you are maintaining on 98, now it is below 90, then it is an alarming sign. Pulse rate is 72 to 80 is the normal pulse and it varies with your temperature. 100 पर 100 होती है पल्स, ये एक फॉर्मूला है. ये वैक्सीन्स जो अप्रूव हुए हैं ड्रग कंट्रोलर से इन एनी कंट्री, इमरजेंसी पेंडेमिक देखते हुए इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है. उस कैटेगरी में प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर नहीं आते हैं. ये ओपन मार्केट में आया नहीं है अभी तो अंडर ट्रायल है, अभी तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के हाथ में है. तो जो रजिस्ट्रेशन है, यदि प्रेग्नेंट लेडी करना भी चाहेगी तो वो रजिस्टर होगी नहीं. अभी लैक्टेटिंग मदर के लिए यूएस सीडीसी ने अप्रूवल दे दिया है, पर इंडिया में अभी भी नहीं हुआ है. उसके लिए हमारे नेशनल बॉडीज बात कर रहे हैं. यदि मैं साइंटिफिकली बात करूं, इसको हटा के रूल्स रेगुलेशन को, तो ये वैक्सीन प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज पर सेफ हैं और लैक्टेशन में भी ये बिल्कुल सेफ है और दिए जा सकते हैं. बल्कि आपको जो इन्फ्लुएंजा लगता है प्रेगनेंसी में, इट इज अटेनुएटेड वैक्सीन, इट इज लाइक कोवैक्सीन ओनली. So many vaccines are given as attenuated. Polio देते हैं, DPT देते हैं. So many vaccines are being given, which are being prepared on these methods only. But it is a legal question. I think something will happen in coming next 2 weeks. Government शायद allow करे. अभी उसको इंडिया में तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वो लीगली आपको रजिस्टर ही नहीं करेंगे. एंड वैक्सीन इज अवेलेबल ओनली एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, so they will not register you. Once it is approved by the drug controller, then yes, she can have it from any government sector, or if they approve, then private sector. हाँ, वो वैक्सीन ले सकती हैं, उसको हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं. एंड आई थिंक दे कैन हैव इट. इंडिया की बात चल रही है अभी, बट विथ पर्सुअल इट इज बीइंग गिवन. यदि वो खुद जाती हैं, खुद बात करती हैं, तो उनको वो लोग नहीं लगाएंगे. हम जैसे हमारे हॉस्पिटल में है और हम रिकमेंड कर रहे हैं तो लगेगा. ऐसा है 1.5 साल 2 साल इज a very short duration to say anything definitively. But one point is there which is being like कि कोविड होने से प्रीटर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं. But I think after 5 years or 10 years, then only something will come out. The only impact at present is preterm labor. The chances are more in the patients who suffered or suffering from COVID in comparison to non-COVID pregnant females. Otherwise, और कोई impact नहीं है. If patient is suffering from severe COVID infection where her oxygen has gone very low, mother is having severe oxygen deficiency, then according to that, that oxygen deficiency can affect the pregnancy. But it all depends on the circumstances. There it is a problem. Yes. No, not at all. COVID is not an indication for cesarean section. These women to be managed as per standard practice. If there is any obstetric indication for cesarean, then only cesarean to be done. She is COVID positive, hence cesarean C-section to be done. It is not like that. And one thing more, it is not like if she's suffering from COVID, the baby will also have COVID while delivering.
either through जी. C-section or vaginal delivery. It is not like that. No vertical transmission of infection. Yes, presence of antibodies seen in 2 babies only till date, Okay. but no vertical transmission of infection is yet to be proved. If she is not COVID positive and nobody in the family is COVID positive, then I don't think she should take any precaution. Okay. Precaution in the sense inside the house, but she has to stay in the house only. No communication, no meeting with the outside people. कोई देखने आ रहा, बच्चे को देख रहा है तो वो नहीं करने देना. That routine practice is to be maintained. But if she is positive, then definitely she can do the breastfeeding, first point. She can handle the baby, second point. But the important thing is she has to take the precautions like hand hygiene and mask wearing, that to N95 mask. It is not chunni, dupatta or single layer surgical mask or triple layer surgical mask. She should wear N95 mask covering her nose and mouth. Isn't it? And then while she is feeding, हम इंडिया में एक चीज और भी बताते हैं कि जब आप बच्चे को फीड कराते हैं, आप एक यूजुअल प्रैक्टिस होती है कॉटन का चुन्नी भी बीच में डालो. यू आर क्रिएटिंग वन मोर लेयर, एडेड लेयर. And it is very good practice if you wear the surgical gown. They are very cheap, very cost effective. आप वो पहनकर यदि फीड कराते हैं और उसके बाद डिस्पोजेबल गाउन्स हैं या अपने पुराने गाउन्स रखो, उनको पहनो, उतारो, फेंको, तो वो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन लेयर्स आपको देते हैं. बेबी हैंडलिंग करना है, हैंड वॉश का ख्याल रखो. नहीं कर सकते हो तो ग्लव्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनो एंड थ्रो देम अगेन एंड अगेन. If you are doing breast pump feeding, you are extracting via breast pump, तो नॉन कोविड पर्सन ने, फैमिली मेंबर ने उसको क्लीन करके आपको देना चाहिए. एंड ऑल सरफेसेस टू बी क्लीन्ड बिफोर फीडिंग एंड आफ्टर फीडिंग. जी, तो मदर अपनी सरफेस भी क्लीन करे और बेबी का फेस भी क्लीन करे. बिल्कुल. प्लेन वार्म वाटर से कर सकते हैं. सैनिटाइजर यदि स्किन फ्रेंडली है तो उसको करना चाहिए. एंड देन वेट वाइप यूज करना चाहिए. उसका इंडिकेशन है, उसका रूल है. यदि मदर को कोविड पॉजिटिविटी हुई है डिलीवरी से 14 दिन पहले के, विद इन 14 days प्रायर टू डिलीवरी, और शी बिकम्स पॉजिटिव विद इन 28 days आफ्टर डिलीवरी, then only the RT-PCR test to be done of the infant. Otherwise, it is not done, though baby is kept under observation, but no test is being done. Any vaccine can give any minimal reaction. They are foreign antigens only, isn't it? So mild fever, mild body ache, mild fatigue is a very normal thing. We take it as a normal thing. Because she is breastfeeding, that is why she cannot afford to have the high body temperature. So she can take the tablet paracetamol 500 milligram. So her body ache will disappear, fever will be within normal limits. So breast milk will also be with normal temperature, and she can continue with the feeding. But if fever is not responding to paracetamol in 48 to 72 hours, then definitely she should consult a doctor. Otherwise, 72 hours it is being subsided. After the second dose, the incidence reported is 0.03 to 0.04%. I think it is negligible. No, you have to take full precautions, even immediately after the second dose. Not only 2 weeks, 4 weeks, 8 weeks. It is not like you can't have COVID, you can have it. The only thing is the severity will be less and chances of catching the COVID will be less. But yes, you are susceptible still, and you have to take all the precautions, including social distancing, masking, etc. Everything you have to do. It is a myth you cannot have the COVID. You see, COVID is one thing जो हर कंट्री में अपने तरीके से आया है. इंडिया में ही हर स्टेट में उसका अपना अलग एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन है. But for you people, I think the best thing is you can Google the FOGSI GCPR. That is FOGSI, Federation of Obstetric and Gynecological Societies of India.
GCPR इज गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस, ठीक है। जी। वो टाइप करके आप कोविड का पूछेंगे, कोविड फॉक्सी GCPR, देन यू विल हैव ऑल द लिटरेचर ऑन द स्क्रीन। आई थिंक इंडियन को इंडिया की ही आंखों से देखना चाहिए, इंडिया को इंडियन की आंखों से देखना चाहिए। सेकंड, इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड, यू कैन गो फॉर WHO लिटरेचर, बट आई विल पर्सनली एडवाइज यू फॉर फॉक्सी। ये तो वही बात हो गई कि फिजिक्स के लेक्चर में तुम केमिस्ट्री पढ़ाने लगे और स्टूडेंट को बोल रहे हो कंफ्यूज्ड मत होना। आप अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। बट आई विल टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग related to this only. The Sputnik V, which is being made by the Russia, what they are doing, they are using 2 doses of vaccination, but the vector is different in 2 doses. They claim if we use 2 vectors, the immunity will be better. But as far as Covaxin and Covishield is concerned, 2 doses have to be same, either of Covaxin or of Covishield, because the methodology is different. Covishield and Sputnik are the with same methodology, so they can afford that कि vector different कर लिया. पर Covaxin is live attenuated virus and Covishield is spike protein on a adenovirus. So methodology is different. इसलिए you cannot mix up Covaxin and Covishield. You can mix Covishield and Sputnik, but not Covishield and Covaxin. But अभी ये option नहीं है, because first it was Covishield. We were vaccinated with Covishield. It was supplied by the government. Now it is the Covaxin which is available at the government centers. Covishield is not available. So it is the question of availability. It is not our choice or option. The practical problem is, the rule is we ask the patient for RT-PCR before admission and companions RT-PCR. 1 or 2 persons allowed to stay with the mother in rotation, and we want the RT-PCR report with them. Our problem is, जिसका RT-PCR होता है वो मदर के पास रुकता नहीं, जो रुकता है उसका RT-PCR नहीं होता, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल तो अपनी प्रिकॉशंस पूरी लेते हैं, उनके लिए एरिया भी हमने डिफरेंट एलोकेट कर रखा है, स्टाफ डिफरेंट एलोकेट कर रखा है, एंड वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस। बट दिस इज द प्रॉब्लम विद द रिलेटिव्स, दे डोंट लिसन टू अस and then they don't wear the mask also. Patient को हम पहनाते नहीं है क्योंकि उसको suffocation होगा रूम में, and they are nowadays the process is single rooms होते हैं सबके, और relatives भी मास्क नहीं पहनते, न्यूबॉर्न बेबी भी रूम में होता है। तो हम उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वही मेंबर्स कंपेनियंस रहे जिनका RT-PCR नेगेटिव है, they should wear the mask, they should follow the rules of COVID protection. You see, that is what patient should do. The hospital part and doctor part, we follow all the COVID precautions. We give the first preference to antenatal mother. तो आप जैसे कह रही हैं कि रिलेटिव्स जो हैं वो मास्क नहीं पहनते, उसमें एक चैलेंज जो अक्सर आता है कि अनलाइक द मेडिकल फ्रेटर्निटी, कॉमन पीपल हु आर नॉट डॉक्टर्स और इन दिस हेल्थ केयर लाइन, जो डेली में मास्क नहीं पहनते हैं, उनको सफोकेशन होती है, सरदर्द होता है, चक्कर आते हैं अगर वो बहुत लंबे समय तक मास्क पहनते हैं। और जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि N95 इज द मास्क दैट इज रिकमेंडेड। तो अगर हम पेशेंट के साथ हैं रूम में और हमें थोड़ा सफोकेशन हो रही है, मगर सेफ्टी के लिए मदर की, बेबी की और खुद की हम मास्क पहने हुए हैं, तो हम कैसे उसको मैनेज करें कि वी गेट कंफर्टेबल एंड वी आर एबल टू कंटिन्यू वेयरिंग द मास्क फॉर अ लॉन्गर टाइम? I will give you the comparison. If you are at home where nobody is COVID positive, there you use the surgical mask, triple layer mask, it is good enough, no problem. But we advise to use N95 in the hospital because the hospital is contaminated place. You see, you need the full protection. So whenever a layman is using the mask, wants to use the mask, what is to be done? First, you take the deep breathing, improve your oxygen up to the max, and then you wear the mask. And when you are wearing the mask, then also you should do the deep breathing. Then everybody can make out कि मुझे आधे घंटे बाद या पौन घंटे बाद I feel little uncomfortable with the mask. Then you go in the open air, take out the mask, complete mask. उसको नीचे मत करो, नीचे ऊपर नहीं करना, neck is infected area, isn't it? तो फिर वो इनर लेयर आपके मुंह पे आ जाएगा। तो आप पूरा मास्क निकालिए, डीप ब्रीदिंग करिए,
और फिर मास्क पहन के आ जाइए, then gradually what will happen, your area of using the mask, the duration will increase gradually and you will be comfortable with the mask. पर initially problem होती है, and the moment you take the deep breathing it is all right, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उसको नीचे, नाक से नीचे कर दिया, केवल माउथ कवर कर लिया, इधर से ऐसे करके कर लिया, डोंट डू दैट इन हॉस्पिटल। चाहती हो, तुम कैसा बेबी चाहती हो, तुम्हारे बेबी की मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए? हैप्पी और एकदम खुशमिजाज, खेल कूद करने वाला, थोड़ा नॉटी, वो कैसे अपना हो सकता है? पॉजिटिव। वो कैसे हो सकता है? बर्थ के बाद तुम उसको खुश रखोगी, अच्छे से जी खिलाओगे पिलाओगे तो होगा ना? जी नहीं, जितना भी बेबी का जेनेटिक प्रोग्रामिंग है, बिहेवियरल जी प्रोग्रामिंग है, वो सब तो तब होता है जब बेबी 9 मंथ्स मदर के पास होता है, इन यूट्रो होता है। जी जैसी मदर करती, जैसे मदर सोचती, जैसा मदर रहती, वो नेटवर्क है, वो पूरा बेबी को ट्रांसमिट होता है। अब आई विल गिव यू वन कंपैरिजन, अ मदर इज इन कोविड एरिया, यू बिकम प्रेग्नेंट, आपको कोई अर्जेंसी नहीं थी, पर आपने सोचा खाली बैठे हैं, लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम है, चलो बहुत बढ़िया टाइम है, बेबी कर लेते हैं, पाल लेंगे आराम से। बट हो क्या रहा है, आप रोज सुबह न्यूज देखते हैं, कोविड 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 कोविड, कहीं आपके दिमाग में, कहीं आपके दिल में 1% नेगेटिविटी है, एक डर है। आप पूरे समय जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, और क्या आप उस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आपकी प्रेगनेंसी या बेबी पर नहीं होगा? होगा। तो यदि आपको अर्जेंसी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो जब इतने समय तक प्रेगनेंसी नहीं हुई, 6 महीने साल भर और नहीं होगी, तो क्या फर्क पड़ेगा? बट रिमेंबर दिस, ये सब बेबी को ट्रांसमिट होता है, और ये अभी नहीं पता चलेगा, ये 5 साल बाद, 10 साल बाद जब बच्चे होते। वन थिंग मोर इंटरेस्टिंग, साइंटिफिकली यदि मैं बात, ये तो इनडायरेक्ट इफेक्ट मैंने आपको बताया, डायरेक्टली यदि मैं बात करती हूँ, टिल डेट वी डोंट हैव एनी लिटरेचर, any study which will describe or prove any impact of COVID on the baby. ये अभी ओके थोड़ी पता चलेगा, अभी तो सब हो रहे हैं, जब बच्चे बड़े होंगे तब उन पर स्टडीज होंगी, तब कहीं जाकर ये बातें निकल कर आएंगी कि कोविड का कोई बच्चे के बिहेवियरल पर कॉग्निटिव इफेक्ट है कि नहीं, ये तब निकल कर आएगा। और जितना हम लोग सोचते हैं, हम नॉर्मल नॉन कोविड कंडीशंस में भी मरीज को देखते हैं, जो मरीज डिप्रेस रहती है, जो उल्टा सोचती है, उल्टा इन द सेंस जिंदगी में हर चीज उल्टा सोचती है, या जो प्रेगनेंसी के लिए एक्सेप्टेंस नहीं देती, मतलब प्रेगनेंसी होने के बाद क्या हो गया क्या हो गया करती हैं, द बेबीज आर ऑल्सो लाइक दैट, देन दे डोंट हैव बॉन्डिंग विद देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी को मदर ने रिजेक्ट किया था। तो जब ये हो सकता है, तो आप खुद ही सोचो अभी एनवायरनमेंट कैसा है। ये सब कहने की बातें हैं, पॉजिटिविटी रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पर एक मदर के दिल से पूछो, घर में रहना है, मास्क लगाना है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। तो इन सब चीजों का इफेक्ट बेबी पर आता है। मेडिकली मैनेज करना वो तो एक आसान काम है, हो ही जाता है। तो इसलिए कपल को सोचना चाहिए, पेरेंटिंग, पेरेंट क्राफ्टिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है प्रेगनेंसी मैनेजमेंट का। उनको हम मेडिकली तो मैनेज करते ही हैं, जैसे भी करना है, उसके जी अलावा वी काउंसल देम, वी गिव देम टाइम, एंड एवरी टाइम वी एक्सप्लेन देम, जो मैंने आपको बताया है हम उनको भी बताते हैं, और उनकी स्थितियों के मुताबिक कैसे अपने चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा को बना के रखना है, ये उनको सिखाते हैं। बहुत सारी चीजें जी सिखाते हैं, उसमें योगा भी आता है, रिलीजियस भी रहता है। ये सब चीजें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। फिर उसको बिजी रहने को बोलते हैं, उसको हैंडक्राफ्ट की ओर प्रमोट करते हैं। तो कितने सारे वेज हैं, तो वो तो जहां तक मेरा सवाल है, ऑलवेज असेस द विमेन, उसकी पर्सनालिटी टाइप, उसका वर्क टाइप, उसका नेचर टाइप देखकर उसको हम मैं एडवाइस करती हूँ कि दैट हैज टू बी कस्टमाइज्ड। यू सी,
अब एक मरीज है, उसको पढ़ने का शौक है, तो मैं उसको और कुछ नहीं बता सकती, उसको मैंने एपीजे कलाम की बुक पढ़ने को बोला। मैं उनकी बिल्कुल अंधा भक्त हूँ एपीजे कलाम की। उनको मैंने बोला, और लड़की सच में पढ़ती थी, 2 पैराग्राफ पढ़कर आती थी, हम डिस्कस भी करते, पर मुझे उसे टाइम देना पड़ता था। वो मुझसे डिस्कस करती थी, एंड आई एम सो हैप्पी। उसका बेबी अभी 2 इयर्स का है, एंड विद सच पॉजिटिव फीलिंग्स। वो पेशेंट खुद डिप्रेशन का केस थी, वेरी सीवियर डिप्रेशन, बट नाउ शी हैज रिकवर्ड। तो ये चीजें होती हैं, ये एक बड़े की तरह आपको समझाना पड़ता है, मरीज को टाइम देना पड़ता है, और इसका इम्पैक्ट आता है, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। आप लोग जो कुछ भी देखते हो क्या हो रहा है, आप नेगेटिव न्यूज को तो बहुत अच्छे से देखते हो, अटेंशन से देखते हो, जी लेकिन पॉजिटिव न्यूज को नहीं देखते हो। और हम जो देख रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ इतने लोगों को हॉस्पिटल में हुआ, मोर देन 70% स्टाफ सब रिकवर हो गए, सब काम पर आ गए। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? यदि मैं इसको अपने अंदाज में कहूँ, तो ये कोविड भी ना एक वायरल इन्फेक्शन है, थोड़ा बुरा मान गया है, अटेंशन सीकिंग चाइल्ड है। इसको शुरुआत में ही अटेंशन दे दो तो ये ठीक रहता है। यदि आप अटेंशन नहीं देते हैं, हाँ, आप उसका ठीक से शुरुआत से इलाज नहीं कराते हैं डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से, तो ये जी टेम्पर टेंट्रम में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? आर ऑब्जर्वेशन इज, जो मरीज शुरुआत से घर पर रहकर अपना मनमाना इलाज करते हैं, जी पढ़ पढ़ कर इलाज करते हैं, वही कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हुए। जिन्होंने शुरुआत डे 1 से डॉक्टर का सहारा लिया, वो जी सब क्लीन कट निकल कर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर फैमिली टू फैमिली कोविड हुआ है, ठीक है ना, और सब रिकवर हुए हैं। तो जी इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सावधानी लेना और डरने में बहुत फर्क है। ठीक है ना, आप खाना बनाते हो, सावधानी लेकर अच्छा बनाते हो, डरते तो नहीं हो ना। तो जी दैट इज हाउ यू हैव टू टेक द लाइफ, इट इज अ चैलेंज, उसको देखेंगे, खुश रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। जिस चीज से आपको पॉजिटिव फील होता है वो करो। आपको गाना सुनने से अच्छा लगता है तो आप म्यूजिक सुनिए अपने इंटरेस्ट का। आपको योगा करने से अच्छा लगता है तो योगा करिए। जुम्बा से अच्छा लगता है तो नॉन वेट बेयरिंग जुम्बा करिए। हंसने से अच्छा जी लगता है तो हंसिए। और सबसे अच्छी चीज होती, देखिए, ईश्वर से बड़ा तो कुछ होता नहीं है। यदि आप ईश्वर में विश्वास रखती हैं और उसकी आराधना करती हैं तो बहुत ही पॉजिटिव फील देता है। तो यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटजी कि आपको किस में अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, एंड जस्ट कट ऑफ ऑल नेगेटिव कन्वर्सेशन। सबको मना कर दो घर में, कोई बात मत करो, कोविड क्या कोविड, कोई कोविड नहीं। अब देखिए, आपको कुछ नहीं महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा, हंसता मुस्कुराता बेबी आएगा। जी थैंक यू मम्मी, काफी क्वेश्चंस का आपने हमें मतलब समझाया मैं आज एक पढ़ रही थी, उसमें वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डर एक जी वायरस है और हिम्मत एक वैक्सीन है। तो आई थिंक दिस जी इज द बेस्ट कोट आई हैव गॉन थ्रू टुडे। तो प्लीज उसको फॉलो करो, एंड सब अंडर कंट्रोल। पेंडेमिक का जो पैटर्न होना चाहिए वो तो बेचारा वो ही फॉलो कर रहा है, हम ही उसको बढ़ा चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ यू जी सेव आवरसेल्फ, एंड रियली नाइस टू सी यू शुभांगी।